हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 5 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। ए बुलेट आफ्टर एंटरिंग ए वुडन ब्लॉक कवर्स 30 सेंटीमीटर इनसाइड इट एंड लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। आफ्टर हाउ मच further distance will it come to stop? 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 50 centimeter. Question number 2. A, B, C and D are points in a vertical line such that AB is equal to BC is equal to CD. If a body falls from rest at A, then the times of descent through AB, BC and CD are in ratio 1 ratio root 2 ratio root 3, root 2 ratio root 3 root 1, root 3 ratio 1 ratio root 2, 1 ratio root 2 minus 1, ratio root 3 minus root 2. Question number 3. A wooden block is dropped from the top of a cliff 100 meter high and simultaneously a bullet of mass 100 gram is fired from the foot of cliff upward with a velocity 100 meter per second. The bullet and the wooden block will meet each other after a time 10 second, 0.5 second, 1 second, 7 second. Question number 4. A stone is dropped into a lake from a tower 500 meter high. The sound of the splash will be heard by a man on the tower after speed of sound in air is 330 meter per second and g is 10 meter per second square. Options हैं 21 second, 10 second, 11.5 second and 14 second. Now solution. Question number 1. A bullet after entering a wooden block covers 30 centimeter inside it and loses half of its velocity. After how much further distance will it come to stop? 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 50 centimeter. A wooden block, suppose this is a wooden block. A bullet यहाँ पर एंटर करती है और वो 30 सेंटीमीटर इनसाइड और 0.3 मीटर जाने पर अपनी जो स्पीड है, यहाँ पर अगर स्पीड u है, वो हाफ लॉसेस हाफ ऑफ द इट्स वेलोसिटी, हाफ लॉस कर देती है, तो रिमेनिंग u by 2. तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकेंड इज v. जब वुडन ब्लॉक में बुलेट पायरस करेगी तो ये वुडन ब्लॉक इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसमें एक रिटार्डेशन होगा. सपोज रिटार्डेशन इज ए. फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as. v इज u by 2, u by 2 का स्क्वायर is equal to u square minus 2a into s. S is, this is s, 30.03 meter. U square by 4 is equal to u square minus 0.6a or 0.6a is equal to u square minus u square by 4 4u square minus 1 minus u square is equal to 3 by 4 u square.
A is equal to 3 by 4 into 0.6 into u square. इसका डेसिमल हटा दें, 10, 3 2 and 5. 5 by 4 u square. A is constant throughout the wooden block. Suppose after distance S1 bullet stops. This distance is S1. Suppose this point is A, B, C. तो B के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी एट C इज 0. तो फॉर पोर्शन BC, for BC initial velocity is equal to u by 2, final velocity is equal to v is equal to 0 और distance या displacement is equal to S1 और retardation this much 5 by 4 u square. A is 5 by 4 u square. V is equal to u, v square is equal to u square minus 2as. This is formula. तो 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी u by 2 का स्क्वायर माइनस 2 5 by 4 u square into S1. U square by 4, 0 is equal to u square by 4 minus 10 by 4 u square S1 और u square by 4 is equal to 10 by 4 u square S1 और S1 is 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 10 u स्क्वायर 1 by 10 मीटर और S1 इज 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर. जो फर्दर पायरेसिंग होगी वो 10 सेंटीमीटर. ए इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 2. A, B, C and D are points on a vertical line such that AB is equal to BC is equal to CD. If a body falls from rest at A, then times of the descent through AB, BC, CD and are in the ratio of 1 ratio root 2 ratio root 3, root 2 ratio root 3 root 1, root 3 ratio 1 root ratio root 2, 1 ratio root 2 minus 1 ratio root 3 minus root 2. Three points. These are 4 points: A, B, C and D. Suppose AB is x, BC is x and CD is x. Initial speed u is 0. तो अगर h फ्री फॉल होता है, h डिस्टेंस, h का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. u इज 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो t की
h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी और t इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। तो अगर h डिस्टेंस फॉल होता है तो t की वैल्यू होती है रूट h बाई जी। अब सपोज टाइम ऑफ फॉलिंग fall for distance AB is T1, BC is T2 and CD is T3. तो falling of A to C, A to B, T1 की वैल्यू आ जाती है T1 इज इक्वल टू, दिस इज फॉर्मूला, तो h की स्थान पे यहाँ पे x है बाई जी रूट। अब अगर हम कंबाइंड निकालें A टू C तो हाइट इज 2x, तो A टू C का जो टोटल टाइम होगा A टू B प्लस B टू C T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x, दिस इज x, 2x बाई जी। और T2 की वैल्यू आ जाती है T1 प्लस T2 में से T1 की वैल्यू घटा दें 2 इंटू 2x बाई जी रूट माइनस 2x बाई जी रूट, 2x बाई जी कॉमन अंडर रूट 2 माइनस 1, देन अब हम A टू D एक साथ लें, A टू D यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और टोटल टाइम, टोटल लेंथ हाइट है 3x, 2 इंटू 3x बाई जी। तो T3 होगा जो T1 प्लस T2 प्लस T3 में से T1 प्लस T2 माइनस कर दें, 2 रूट 3x टू इंटू 3x बाई जी अंडर रूट माइनस दिस मच 2 इंटू 2x बाई जी अंडर रूट, 2x बाई जी कॉमन रूट 3 रूट 2। तो हमारी वैल्यूज आ जाती हैं T1 रेशो T2 रेशो T3 इज इक्वल टू रूट 2x बाई जी रेशो रूट 2x बाई जी रूट 2 माइनस 1 रेशो रूट 2x बाई जी अंडर रूट 3 रेशो अंडर रूट 2। दिस कम्स 1 रेशो रूट 2 माइनस 1 रेशो रूट 3 माइनस रूट 2। This D is correct option. Question number 3. A wooden block is dropped from a top of cliff 100 meter high and simultaneously a bullet of mass 100 gram is fired from the foot of the cliff upward with a velocity 100 meter per second.
A bullet and wooden block will meet each other after a time 10 second, 0.5 second, 1 second, 7 second. A cliff है, cliff of 100 meter. This height is 100 meter. एक वुडन ब्लॉक, यहाँ से एक वुडन ब्लॉक ड्रॉप किया जाता है और नीचे से एक बुलेट फायर की जाती है. दिस इज वुडन ब्लॉक और ये बुलेट. सपोज आफ्टर टी टाइम दे मीट और किसी एक पॉइंट पर, मान लिया ए पॉइंट पर, तो ये इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की दिस मच, दिस इज सपोज h1, और इसने जो ट्रेवल की बुलेट ने दैट इज h2. तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 100 मीटर. तो h1 होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला. तो h1 u इज 0, t प्लस हाफ gt स्क्वायर. h1 और g डाउनवर्ड हैं, तो डाउनवर्ड इस केस में पॉजिटिव लिया है क्योंकि बोथ आर डायमंड. तो h1 की वैल्यू आ जाती है 1/2 gt स्क्वायर. अब बुलेट, बुलेट को जो फायर किया जाता है वो 100 मीटर पर सेकेंड से. बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड u. जो बुलेट की जो अपर साइड, ऊपर की साइड को हम ऊपर की जो डायरेक्शन उसको पॉजिटिव और लोअर साइड को नेगेटिव. तो यहाँ पर h2 पॉजिटिव, u इज पॉजिटिव बट g इज नेगेटिव, हाफ gt स्क्वायर. तो h2 की वैल्यू आ जाती है 100t माइनस हाफ gt स्क्वायर. इस इक्वेशन हमने पुट कर दिया 1/2 gt स्क्वायर प्लस 100t माइनस 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर. ये क्रॉस हो गया. 100t इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 100/100, 1 second. After 1 second, bullet and wooden block will meet. C is correct option. Question number 4. A stone is dropped into a lake from tower 500 meter high. The sound of the splash will be heard by a man on the tower after speed of sound in air is 330 meter per second. G is 10 meter per second square. 21 second, 10 second, 11.5 second, 14 second. एक टावर, यहाँ पर एक टावर है और दिस इज लेक. दिस डिस्टेंस इज 500 मीटर. लेक and this is tower. और टावर पर ही मैन इज ऑन द टावर. एक स्टोन
हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, यहाँ पे स्प्लैश साउंड होगी और साउंड ये वापस ऊपर मैन को सुनाई देगी। तो जो टाइम कंज्यूम्ड है वो स्टोन को लेक के पानी से टकराने में, सपोज दिस इज T1, एंड साउंड को वापस जाने में, दैट इज T2। तो T1 प्लस T2 इज टू बी कैलकुलेटेड। फॉर मोशन ऑफ स्टोन, initial speed is 0, time t is equal to T1, s is equal to 500 meter, and g is 10 meter per second square. तो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s 500, ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों पॉजिटिव लिए हैं। 500, u इज 0 इंटू टी प्लस 1 इंटू 10 टी स्क्वायर। 0 प्लस 5 टी स्क्वायर और 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज 500 डिवाइड बाई 500, टी इज इक्वल टू 100 रूट T1, T1। T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो जो स्टोन को लेक तक आने में 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब जो साउंड होगी, स्प्लैश होगा, उसकी साउंड लेक से टावर तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, अब 4 साउंड ऑफ स्प्लैश, 4 साउंड journey from lake to tower. Distance is 500 and speed is 330. तो T2 होगा distance upon speed. Distance is 500 and 330, 550 by 30 second. Total time T1 plus T2 is 10 plus 50 by 33 second, that is approximately 11.5 second. This C is correct option.